Practical session of Jacquard. Before we start the practical class, we must to know some important parts name of Jacquard, which will help during the entire class. Hooks, knife, knife frame, neck cord, hook resting bar, neck cord board, needle, needle board, cylinder, spring box, spring, pattern card, etc. पेपर डिज़ाइन टू डिज़ाइन ऑन क्लॉथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने पेपर पे ड्राइंग किया डिज़ाइन, और वही डिज़ाइन कपड़े में भी हमने लाया वीविंग के ज़रिए। ये हमने पेपर डिज़ाइन और ये आपके क्लॉथ व्यू डिज़ाइन, मतलब वही डिज़ाइन क्लॉथ पे कैसे दिखेगा, ये यहाँ पर व्यू है। जैकार्ड वीविंग प्रोसीजर एंड लूम। First, in this loom, there is a single treadle for lifting the jacquard and ensure that before weaving the warp is tight. Second, first place the treadle by the leg till the full sheet open. Third, then send backward the sleeve and through the shuttle between the sheet. Fourth, after that, beat the lastly inserted peak with the help of sleeve. Fifth, for the next peak, continue this process peak by peak. In this way, we can operate the loom or jacquard loom for weaving the different types of cloth. Figured interchanging double cloth, two color effect. First point, figured interchanging two color effect double cloth are produced by having consist of one side light and another side dark color arrangement in the warp and weft. Second point, two plain weave layers of cloth one over the another is called double cloth. Third point, if the top cloth layer is in light color warp and light color weft combination, and the bottom cloth layer is in dark color warp and dark color weft combination. Fourth, similarly, two plain layers of cloth, one over the others, exactly opposite to ground parts from the figure parts. Fifth, that is, if the top cloth layer is in dark color warp and dark color weft combination, the bottom cloth layer is in light color warp and light color weft combination, और वाइस वर्सा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डबल क्लॉथ मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। टॉप अगर एक कलर दिखे तो उसका बॉटम दूसरा कलर दिखता है। डबल क्लॉथ का मीनिंग यही होता है, टू प्लेन वेव, जो हमारा प्लेन वेव का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी कॉम्बिनेशन को मिला के डबल क्लॉथ प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे दो लेयर का प्लेन क्लॉथ को एक ही लेयर में उसको वीव किया जाता है और वो डबल साइडेड होता है टू कलर, उसी को टू कलर इफेक्ट डबल क्लॉथ कहा जाता है। डबल क्लॉथ में आप अगर जैसे देखेंगे, कोई भी एक मोटिव का कलर अगर टॉप साइड में अगर कोई डार्क कलर है तो उसी मोटिव के बॉटम साइड में उसका ऑपोजिट यानी कि लाइट कलर होगा। जो भी हम दो कलर का कॉम्बिनेशन करके हम वीविंग किए होंगे, उसी का दोनों में ऑपोजिट हमेशा पाया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, देयरफॉर बोथ इन ग्राउंड एंड फिगर पोर्शन टू लेयर्स ऑफ क्लॉथ remain separate but interchange between each other, where the ground changes to figure and the figure changes to ground. Seventh point, these interchanging places are the stitching place of the double cloth. Eighth point, the weave of the layer is mostly plain. In few parts, twill and the other simple weave are also used. इसका मतलब ये है, जैसे कि डबल क्लॉथ में दो लेयर होता है, वो अपने आप जुड़े नहीं रहते हैं। जहाँ पर हमारा कलर का चेंजेस आएगा,
जैसे टॉप का पोर्शन बॉटम में जाएगा और बॉटम का पोर्शन टॉप पे आएगा, उसी जगह पे इंटरचेंज होता है। और ये हम जैसे कि प्लेन वीव में डबल क्लॉथ बनाते हैं, तो इसी में हम कोई सा सिंपल सा ट्विल वीव भी लेके हम इसमें डबल क्लॉथ बनाएंगे और उसका मोटिव में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर सा पेपर लिया है और उसमें जो राउंड शेप का एक डिज़ाइन है और राउंड शेप का जो डिज़ाइन है उसमें एक आउटलाइन है। तो इसमें हम दर्शाया गया है, जैसे हमारा ग्राउंड पोर्शन हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और जो मोटिव होगा ये हमारा फिगर हो गया, और ये फिगर का जो आउटलाइन है ये हो गया हमारा इंटरचेंज पॉइंट। जैसे ग्राउंड में हम अगर लाइट प्लस डार्क ले सकते हैं या डार्क प्लस डार्क ले सकते हैं, इसी तरह हम ये अपना जो डबल क्लॉथ है इसको हम बनाते हैं। धन्यवाद। हार्नेस बिल्डिंग प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट, in straight tie and straight draft system, an ordinary jacquard is used, in which the hooks and needles are connected in the ordinary manner. Second point, first needle of the machine controls first hooks in the machine and continued so on till the last needle and the last hook of the machine. Third point, with the first hook of the machine, the first harness cord is connected, second hook is the second, and the third hook to the third, and so on continue to the till the last. जैसे कि हार्नेस बिल्डिंग प्रोसीजर में जैसे जैकार्ड का जो फर्स्ट हुक होता है वो फर्स्ट हार्नेस होता है कमर बोर्ड में, उसके बाद जो 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह कंटिन्यू किया जाता है। कमर बोर्ड का एक काउंट होता है, जैसे रेट काउंट का अगर 1 इंच में जैसे EPI होता है, रेट काउंट अगर 40 हुआ तो उसका EPI 40 होगा। तो इसी तरह हमारे कमर बोर्ड में भी 1 इंच में 40 होल्स यानी कि 40 हार्नेस कॉर्ड वहाँ पे आना चाहिए। इसी हिसाब से हम हार्नेस करते हैं कमर बोर्ड में। There are various loom techniques that are used in weaving DC2. There are 4 numbers of technique. First one is ordinary jacquard with straight tie and straight draft. Second, ordinary jacquard with straight tie and sectional draft. Third, ordinary jacquard with sectional tie and straight draft. Fourth, special double equal plain cloth jacquard or special jacquard. These are used in weaving the DC2. There are various techniques used during the weaving of double cloth 2-color effect. Method of producing figure interchanging double cloth DC2. Warp and weft, 2 series of warp and 2 series of weft, 1 light and 1 dark coloring order in both warp and weft. Jacquard, single lift, single cylinder jacquard, harness tie, straight tie, drafting, straight draft. Design, pattern cord with a design. डबल क्लॉथ 2-color इफेक्ट हमें बनाने के लिए वार्प में हमारे 2 सीरीज का कलर होना चाहिए 1:1, जैसे 1 लाइट और 1 डार्क कलर। वही सेम हमारे वेफ्ट में भी यूज होना चाहिए 1 लाइट कलर एंड 1 डार्क कलर 1:1। हमारा सिंपल सा जैकार्ड चाहिए, ऑर्डिनरी जैकार्ड चाहिए। हमारा हार्नेस और ड्राफ्टिंग स्ट्रेट ड्राफ्ट और टाई होना चाहिए। और डिजाइन कार्ड में हमें पैटर्न कार्ड विद डिजाइन, जैसे हम कोई भी डिजाइन लेंगे उसका पंच किया हुआ पैटर्न कार्ड विद चेन फॉर्म, तो उसको हम प्रिपेयर करेंगे बिफोर द वीविंग। वार्प प्रिपरेशन, 2 सीरीज ऑफ वार्प मीन्स 2 color of in 1 beam, 1 light and 1 dark coloring ड्राफ्टिंग कलर। जैसे हमारा वार्प बनाने के लिए हमें 2 सीरीज ऑफ वार्प, उसका मतलब क्या होता है, हमारा 2 वार्प कलर एक ही बीम में होगा, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। उसी हिसाब से ड्राफ्टिंग भी करेंगे 1:1, 1 लाइट कलर एंड 1 डार्क कलर। डबल क्लॉथ रेफरेंस वीव
और गाइड ग्राफ एट टू कलर इफेक्ट ऑफ DC2। DC2 वीविंग के लिए हमें जो कंबाइंड वीव का ज़रूरत पड़ता है, जैसे एक मोटिव के लिए है और एक ग्राउंड के लिए है। जो ये कंबाइंड वीव हमारा होता है, ये प्लेन वीव, दो प्लेन वीव को मिला के हमारा जो ये वीव बनाया जाता है डबल क्लॉथ का, उसको कहते हैं पैड वीव। उसी पैड वीव को बनाने के लिए दो प्लेन वीव को कॉम्बिनेशन करके ये हमने फॉर्म किया। जैसे आप यहाँ पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, एक हमने जो वीव यानी कि पैड वीव बना है DC2 के लिए, ये एक है वीव फॉर मोटिव और उसका रिवर्स है वीव फॉर ग्राउंड। यानी कि कोई भी डिजाइन कपड़े में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंड में और जो मोटिव होता है उसका रिवर्स वीव डालना पड़ता है। यानी कि जो भी वीव, या चाहे DC2 का वीव यानी पैड वीव हो या ट्विल हो, सर्टेन कोई भी वीव हो, मोटिव में जो डालेंगे उसका रिवर्स हम ग्राउंड में डाल दें। इसी तरह हमारा ये दो वीव दिखाया गया यहाँ पे, एक वीव फॉर मोटिव एंड दूसरा वीव फॉर ग्राउंड। इसी को लेके हम आगे जो हमारा ग्राफ बनाएंगे, यही वीव हम फील करेंगे मोटिव के लिए मोटिव का और ग्राउंड के लिए ग्राउंड का। ग्राफ प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ द मोटिव और एंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजाइंस डिवाइडेड बाय EPI इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द मोटिव। हमें विड्थ ऑफ द मोटिव निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, यानी कि साइज ऑफ द मोटिव निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे नंबर्स ऑफ डिजाइन हुक डिवाइडेड बाय EPI। नंबर ऑफ डिजाइन हुक मतलब जो हमारा जैकार्ड का कैपेसिटी होता है, उसी कैपेसिटी के अंदर हम जितना डिजाइन हुक लेंगे उसी डिजाइन हुक डिवाइडेड बाय EPI यानी कि एंड्स पर इंच जो रेट काउंट होता है, उसी को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो मोटिव का विड्थ ऑफ द साइज यानी कि विड्थ वो हमारा निकल के बाहर आएगा। सेकंड जो है नंबर ऑफ पिक्स इन द ग्राफ इज इक्वल टू डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द डिजाइन एंड पिक्स पर इंच। जो हमारा जो नेक्स्ट होता है डिजाइन में जो हाइट होता है, तो उसका जो पिक, जितना पिक हमें चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डिपेंड ऑन द लेंथ और हाइट ऑफ द डिजाइन, तो हाइट कितना रखेंगे डिजाइन का और उसका पिक कितना होगा, यानी कि हम PPI के हिसाब से उसका पिक मेजर करेंगे। थर्ड एनलार्ज एंड गिव स्टेपिंग, डिजाइन बनाने के बाद यानी कि ड्राइंग हम पेपर में बनाने के बाद उसको हम ग्राफ में एनलार्ज करने के लिए उसको डिजाइन बनाएंगे और एनलार्ज करने के बाद उसी ग्राफ में स्टेप बाय स्टेप हम उसको फिल करते जाएंगे। फोर्थ पेंट द फिगर पोर्शन टू स्लो डार्क और लाइट कलर फॉर द फील द रिवर्स वीव। यानी कि हम डिजाइन बनाने के बाद जो हमारा डिजाइन पोर्शन होगा उसमें कुछ लाइट कलर हम यानी ट्रांसपेरेंट कलर हम उसमें फील करेंगे यानी कि पेंट करेंगे, क्योंकि हमें जब कार्ड कटिंग में प्रोसीजर में वो हेल्प होता है और ग्राउंड और मोटिव जो डिजाइन का पोर्शन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें काम होता है। इसीलिए हम जो डिजाइन बनाते हैं उस डिजाइन को एक लाइट कलर में पेंट कर देते हैं। फिफ्थ गिव बाइंडिंग मार्क इफ फिगर लाइट कलर एंड ग्राउंड डार्क कलर पोर्शन। सिंस द डबल क्लॉथ वीव इज एन इक्वल फेस वीव, इट इज नेसेसरी टू गिव द वीव्स मार्क अप टू द कॉर्नर। यहाँ पर बोला गया है जो हमारा डिजाइन और जो ग्राउंड होता है, जैसे दो कलर ही लेते हैं हम DC2 में, तो इसीलिए एक लाइट कलर और एक डार्क कलर है। लाइट कलर अगर फिगर में लेंगे तो डार्क कलर ग्राउंड में होगा, अगर डार्क कलर फिगर में लेंगे तो ग्राउंड कलर लाइट होगा। ये हमारा इक्वल पोर्शन रहता है। सिंस द डबल क्लॉथ वीव इज इक्वल फेस, वो दोनों तरफ इक्वल फेस होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वीव मार्क यानी कि जो मार्क जो कॉर्नर ऑफ टू होता है, जैसे हम दिमाग से बनाते हैं, फिगर सिंगल क्लॉथ में बनाते हैं, तो उसमें क्या करता है जो भी डिजाइन का कॉर्नर होता है उसमें हम जो मार्क अगर आएगा तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन डबल क्लॉथ में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। डबल क्लॉथ में हम अप टू कॉर्नर अप टू वो मार्क करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी कोना हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इक्वल फेस होता है और ये डबल क्लॉथ बनता है, इसलिए अप टू कॉर्नर तक हमें वीव मार्क फिल करना है। जो इसका 6th पॉइंट है इंडिकेट सेल्वेज वीव मार्क। फिर हमारा डिजाइन का पोर्शन ख़त्म होने के बाद हम
सेल्वेज मार्क करेंगे और सेल्वेज में भी हम वीव फिल करेंगे। 7th, डिवाइड द एंड्स इन ग्रुप्स, नंबर्स ऑफ एंड इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ नीडल्स इन शॉर्ट रो। फिर ग्राफ बनने में हमारा जो डिजाइन बनाने के बाद वीव फिल करने के बाद हम उसको एक लाइन खींचना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? नंबर्स ऑफ एंड्स इन ईच ग्रुप डिवाइडेड इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ नीडल इन शॉर्ट रो। जो हमारा जैकार्ड, जिस जैकार्ड में हम ये डिजाइन लगाने वाले हैं या ये वीव करने वाले हैं, तो उसी जैकार्ड का जो लॉन्ग रो होता है, लॉन्ग रो जितना नंबर्स होगा उसी हिसाब से हम ग्राफ को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 हुक कैपेसिटी जैकार्ड में 4 लॉन्ग रो होता है, तो 4 लॉन्ग रो होता है, इसीलिए हम हर ग्राफ को ईच सेक्शन 4 पिक्सल में हम लाइन मार्कअप करेंगे। ये लाइन मार्कअप करने का मतलब ये होता है कि हम जब पैटर्न कार्ड पंचिंग करेंगे तो हम इजीली वो पंच कर पाएंगे, इसीलिए लाइन मार्कअप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग रो ऑफ द जैकार्ड। Calculation for the total numbers of ends and peaks for graph. For example, jacquard capacity is equal to 100, means 104 hooks, 4 hooks for selvage. अगर हम जैकार्ड कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें, अगर हम बोलें 100 हुक का जैकार्ड कैपेसिटी है तो उसमें 104 हुक्स रहता है। जो 4 हुक्स होता है वो सेल्वेज के लिए होता है और जो 100 हुक्स रहता है वो हमारा डिजाइन के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 4 हुक्स सेल्वेज राइट साइड एंड 4 हुक्स सेल्वेज लेफ्ट साइड। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्वेज हुक इज इक्वल टू 8 हुक्स। तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो लूम्स है तो वहाँ पे जो हमारा 4 हुक सेल्वेज लेफ्ट साइड के लिए लिया गया है और 4 हुक सेल्वेज हमारा राइट साइड सेल्वेज के लिए लिया गया है। जो रेस्ट हुक है हमारा 104 माइनस 8 इज इक्वल टू 96 हुक्स इन डिजाइन हुक्स। सो हमारा जो डिजाइन हुक्स है यहाँ पे 96 हुक्स है। जो आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे 96 हुक्स डिजाइन लिए हैं और 8 हुक्स हमने सेल्वेज के लिए लिया है। और हमने यहाँ पे लिया है रेट काउंट 40 और पीपीआई सपोज मान लीजिए हमने 36 लिया है। उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एंड्स और पीक्स कितना होना चाहिए। ये हमारा पार्टिकुलर्स है। अगर आप भी अगर कोई डिजाइन का एंड्स एंड पीक्स भी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि जैकार्ड कैपेसिटी क्या है, उस लूम का हार्नेसिंग क्या है। अगर आप लूम रेडी होने के बाद अगर डिजाइन बना रहे हैं तो आपको डिजाइन लूम के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप डिजाइन पहले बना रहे हैं और लूम का प्रिपरेशन बाद में कर रहे हैं तो आपको डिजाइन के हिसाब से लूम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारा पहले लूम ऑलरेडी फिटेड है। Calculation for the total numbers of ends and peaks for graph. For example, jacquard capacity is equal to 100. Ends calculations. Total number of ends calculations for this design. Width of the motif is equal to design hooks divided by EPI. जैसे कि पहले हम बताए हैं कि width of the motif निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ डिजाइन हुक्स डिवाइडेड बाय EPI या रेट काउंट। ये फार्मूला हम अगर पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वही आपका विड्थ ऑफ द मोटिव होगा। सो दैट 96 हमारा डिजाइन हुक्स हो गया, तो उसका डिवाइडेड बाय 40, यानी कि रेट काउंट हमारा 40 है, तो इजिकल टू 2.4 इंचेस। तो हमारा यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द मोटिव है 2.4 इंचेस निकल गया है। देन टोटल नंबर ऑफ एंड्स टेकन फॉर एनलार्जमेंट। जो हम डिजाइन एनलार्ज करेंगे पेपर डिजाइन से ग्राफ में, तो हम ग्राफ में कितना एंड्स लेंगे, यानी कितना पिक्सल लेंगे। तो हमारा डिजाइन का साइज है 2.4 इंचेस, हमारा रेट काउंट है 40। तो इसका जो फॉर्मूला है
total number of ends taken for enlargement is equal to width of motif into EPI. So that 2.4 inches into 40 is equal to 96 ends. 96 ends यानी कि हमारा 96 पिक्सल्स हमें वार्प की तरफ हमें लेना पड़ेगा ग्राफ में. Then peaks calculation. Suppose peaks per inch 36. Just for imagine 36 that if you have the 40 read count, so you can easily imagine that nearly the PPI is determined. जैसे कि 40 अगर रेड काउंट है, अगर वार्प में और वेब में अगर सेम धागा हम यूज कर रहे हैं तो नियरली 36, 38 और 40, 42 उसका PPI आ सकता है. सपोज हम यहाँ पे हमारा जो डिजाइन है उसमें 36 PPI लिए हैं. टोटल नंबर ऑफ पिक्स टेकन फॉर एनलार्जमेंट इज इक्वल टू लेंथ और हाइट ऑफ द मोटिव इनटू PPI. तो हमारा नंबर ऑफ पिक्स यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल इन विड्थ वाइज यानी कि पिक में कितना होगा पिक्सल, उसका फॉर्मूला है लेंथ और हाइट ऑफ द मोटिव इनटू PPI. जो हमारा मोटिव का हाइट होगा उसी का इनटू PPI होगा. सो दैट सपोज माई मोटिव हाइट इज 2 इंचेस. सपोज जो मैं डिजाइन बनाऊँ उसमें मेरा हाइट है डिजाइन का 2 इंच है. तो जैसे कि हमारा PPI ऑलरेडी सपोज हमने 36 लिया है तो इसका फार्मूला आ जाएगा 2 इंचेस इंटू 36 PPI इज इक्वल टू 72 पिक्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 72 पिक्स मतलब हमारा जो ग्राफ में हम 72 पिक्सल लेंगे पिक्स वाइज. तो जैसे कि फाइनली वी टेक ए ग्राफ 96 एंड्स एंड 72 पिक्स फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द पेपर डिजाइन इनटू ग्राफ डिजाइन. जैसे हमें पेपर डिजाइन से ग्राफ डिजाइन में एनलार्जमेंट के लिए हमें ग्राफ का जो साइज है यहाँ निकल के आए, तो हमें 96 एंड्स वाइज यानी कि वार्प के साइड पे और 72 पिक्स वाइज जैसे कि वेब के साइज में हमें ये पिक्सल लेना पड़ेगा और ग्राफ को एनलार्ज करना पड़ेगा. मेन पॉइंट फॉर ग्राफ प्रिपरेशन. ग्राफ प्रिपरेशन के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. पहला है नंबर ऑफ एंड्स इन मेन ग्राफ इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ हुक्स डिवाइडेड बाय 2. सेकंड, नंबर ऑफ पीक्स इन मेन ग्राफ इज इक्वल टू टोटल पीक्स ऑफ द डिजाइन. थर्ड, in the main graph stepping is given following the stepping of guide graph or weave. Fourth, every one step in each direction of the guide graph or weave is doubled in the main graph. Fifth, because of this at least one light and one dark thread are made available even the minimum gap of the figure and ground. Give the following weave in ground and figure portion. तो कुछ बातें हैं यहाँ पे जैसे आपको ध्यान में देना पड़ेगा. जैसे कि 4 नंबर आप देख पाएंगे, एवरी वन स्टेप इन ईच डायरेक्शन ऑफ द गाइड ग्राफ और वीव इज डबल इन द मेन ग्राफ. जो हमारा गाइड ग्राफ है तो मेन ग्राफ में करने के लिए उसका डबल हो जाता है. और फिफ्थ में जैसे एटलीस्ट आपको एक लाइट और डार्क कलर का थ्रेड लेना पड़ेगा और उसमें जो मिनिमम गैप होता है वो फिगर और ग्राउंड का वो आपको एटलीस्ट डार्क या लाइट का एक धागा होना पड़ेगा. गिव द फॉलोइंग वीव ग्राउंड एंड फिगर पोर्शन. फिर उसके बाद आपको वीव फिल करना पड़ेगा ग्राउंड पोर्शन पे और फिगर पोर्शन पे. सेवेंथ, व्हाइल गिविंग वीविंग मार्क्स इन द ग्राफ इट इज नेसेसरी टू स्टार्ट द रिपीट ऑफ द वीव्स बाय कंटिन्यूइंग द ऑर्डर ऑफ कलरिंग फॉर द ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एंड्स एंड 4 पीक्स in the margin. 8. Since the double cloth weave is an equal phase weave, it is necessary to give the weave's mark up to the corner. 9. Divide the ends in the graph in groups according to the number of needles in the long row of the jacquard. जैसे कि आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो गाइड वीव होता है वो 4x4 होता है, 4x4 होता है. उसी हिसाब से आप जब कोई भी डिजाइन का चेंज करेंगे तो आपको मिनिमम ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 4 पिक्सल का कोई एक स्टेप या कुछ अलग सा हो. जैसे कि 1 पिक्सल या 2 पिक्सल करेंगे उसमें हमारा डिजाइन कट होने की संभावना है. तो इसीलिए आप मिनिमम कोई भी चीज़ अगर करें तो 4 पिक्सल लेके
अगर मान लीजिए एक लाइन बना रहा है तो मिनिमम 4 पिक्सल लेंगे तो बेहतर डिजाइन बनेगा। जैसे फिर आप डबल क्लॉथ वेव में तो आपको अप टू कॉर्नर तक आपको वेव फील करना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी दमाक्स हो या सिंगल क्लॉथ हो उसमें क्या करते हैं, जो कॉर्नर वाला होता है उसमें हम छोड़ देते हैं, लेकिन डबल क्लॉथ में हमें कॉर्नर तक ही वेव फील करना पड़ेगा क्योंकि ये डबल क्लॉथ होता है। और उसके बाद आपको ग्राफ बनाने के बाद आपको ईच स्मॉल ग्रुप में वो ग्राफ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग रो ऑफ द जैकार्ड, क्योंकि हमें उसके बाद पैटर्न कार्ड कटिंग करना पड़ता है और वो पैटर्न कार्ड कटिंग के लिए हमें वो लॉन्ग रो के हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप वो हम कार्ड कटिंग करते हैं। इसीलिए आपको लास्ट में ईच स्मॉल ग्रुप आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर टू आइडेंटिफाई फॉर द कार्ड पंचिंग और नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर कार्ड पंचिंग। डबल क्लॉथ वीव एड 4 कलर इफेक्ट। जैसे कि हम डबल क्लॉथ बनाते हैं तो डबल क्लॉथ DC2 कलर इफेक्ट में हमें 2 कलर का इफेक्ट दिखता है डिजाइन पे, लेकिन डबल क्लॉथ वेव में 4 कलर इफेक्ट का भी होता है। जैसे कि आप अगर हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया हुआ जो वेव हम डिफरेंट डिजाइन के पार्ट में डालेंगे तो डिफरेंट शेड्स दिखेगा। इसी हिसाब से हम आगे नेक्स्ट में हमारा जो डबल क्लॉथ वेव 4 कलर इफेक्ट वाला है उसमें हम आपको आगे बताएंगे। ये जस्ट पर आपको रेफरेंस के लिए है कि कोई डबल क्लॉथ वेव में 2 कलर इफेक्ट और 4 कलर इफेक्ट का भी डिजाइन बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पंचिंग। फर्स्ट, पंच ऑल द मार्क 1 पिग इज इक्वल टू 1 कार्ड। सेकेंड, ऑल द कार्ड आर नंबर्ड in the order of 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसो एंड कंटिन्यू। जैसे कि पंचिंग में हमारे जो पंच किया जाता है उसमें जो भी मार्क होता है ग्राफ में उसी को हम पंच करते हैं और एक पिक के लिए हमें एक पैटर्न कार्ड पंच करना पड़ता है। ऑल द पैटर्न कार्ड आर पंच देन वी कैन लिस्ट टू इन द सीरियल नंबर वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज कंटिन्यू। देन we can next procedure to lacing. In this lacing, all the cards are laced in regular order 1, 2, 3, 4, 5, 6 as continued. लेसिंग में हमें रेगुलर ही जैसे कि सीरियल नंबर वाइज हमें कार्ड को प्लेस्ड करना है इन द लेसिंग स्टैंड पे और हमें लेसिंग कंटिन्यू करना है। देन वीविंग, फर्स्ट हैविंग 2 शटल विथ 1 लाइट एंड 1 डार्क webbed color. Second, weaving is carried out on 1:1 order. जैसे कि डबल क्लॉथ वीविंग के दौरान पे हमें 2 शटल का जरूरत होता है, एक लाइट कलर एंड अनदर वन इज द डार्क कलर, क्योंकि हमें डबल क्लॉथ में 2 कलर इफेक्ट के लिए ऑफ एंड डाउन में अलग अलग कलर होगा, तो इसीलिए हमें भी 2 कलर का शटल चाहिए। और वैसे ही पहले ही हमारे वार्प कलर में भी 2 कलर रहता है, तब जाके हम उसी सेट का 2 कलर अगर शटल यूज करेंगे तो उसी सेट में लाइट का लाइट में मैच करेगा और डार्क का डार्क में मैच करेगा और दोनों ही कंबाइन करके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे मोटिव को क्रिएट करके एक ग्राउंड में अगर मोटिव आएगा दूसरे में उसी का अपोजिट कलर आएगा। सेकेंड, वीविंग इज कैरिड आउट ऑन 1:1 ऑर्डर। जैसे हम वीविंग करेंगे, फर्स्ट अगर लाइट कलर वीव कर रहे हैं तो सेकंड डार्क, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे लाइट डार्क एज कंटिन्यू सो ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more videos.